Hi everyone, I'm Jaya Rai from the Plant-Based Treaty, and I'm very glad to welcome you all today to this wonderful talk by Mr. Pradeep Shah. I'll start by introducing the Plant-Based Treaty a bit. So the Plant-Based Treaty is a grassroots organization, and we've started, I think we founded it somewhere in 2021. This is a brainchild of the Save Movement, and the founder of the Save Movement is Ms. Anita Kranks. And so it started with animal rights, and we also decided to offer solutions through the plant-based treaty. And we have three very core principles, which is redirect, relinquish, and restore. Under redirect, we actively ask and encourage people to transition, whether it's government level, individual level, or groups, to transition from an animal-based diet to a plant-based diet, which is why we also do things like this challenge. Because we believe, when you go plant-based, go vegan, it's not only going to positively affect your health, it's also going to have a positive effect on the climate, and of course, you end up saving a lot of animals. Then under relinquish, we ask governments, organizations, or various people to not use any more land for animal agriculture. So no use at all, like no new land should be used for animal agriculture. You can read at length all our demands on the website. And under restore, we encourage people, organizations, governments to reforest the earth. Even if there's old land that was previously used for animal agriculture, restore it, turn it into a forest. We encourage people to grow their own food, have food forests. Because when you eat fresh produce, it's going to benefit your health. It's going to be fantastic for the environment and, of course, animals. So without taking too much of your time, I'd like to introduce Mr. Pradeep Shah, who's very kindly agreed to host this talk for us. And Mr. Pradeep was born and brought up in Mumbai. He's been an electronic engineer. He was working in the field of design and development. And presently, he's manufacturing electronic test and measuring instruments for industrial applications. He's aged about 68. And he was suffering with a lot of health issues, like right from coughs, colds, headaches, constipations to premature hair loss, body pain, all of that. Around 40 years, he also was detected for high blood pressure. Later, he was diagnosed with cholesterol, diabetes, so many issues, which is very common nowadays, with the kind of lifestyles people lead. He tried yoga, meditation, pranayama, and that helped to a certain degree, but not completely. Like he wasn't free of disease. But then he got introduced to the new diet system. He and Mr. Pradeep and Mrs. Meena both were introduced to a new diet system. I think it's an organization called the New Diet System, and they had miraculous results. Like their health transformed overnight. Mr. Pradeep will share more about what he's been following for the past couple of years. And their immunity levels, health, everything improved drastically. They live virtually on fruits and vegetables, green leafy vegetables, salads. Fireless cooking basically is what they follow. And they've experienced high energy, vitality, and so much more. And Mr. Pradeep also says that his intuition says that he will stay healthy forever, and even his exit from this world will be, in a very calm, healthy manner. So that's really something. So he holds talks regularly to motivate others because of the positive effects he's had in his life. So the mission of New Diet System is also Ahimsa Paramo Dharam. Means Ahimsa should be your first dharam, your first religion, kind of. And he believes in living a world without medicines, sorrow, pain, suffering, none of that. Just have a happy, blissful life. That's completely possible with the healthy diet. I myself have experienced that, and I want to amp up my health as well, listening to people like Pradeep ji. And he believes that natural birth, all of these things are very possible when you follow a healthy diet. And because the major violations that we are facing nowadays is animal-based milk and dairy products, cooked food, wrong diet plans, overeating, junk food, greed, anxiety, ego, anger, jealousy, hatred, animosity, worry, fear. These are all the things that Mr. Pradeep feels are detrimental to our society. So by promoting plant-based living and lifestyle, he believes that we will have mental, emotional, and spiritual health. So without further ado, I would love to hand over the talk to Mr. Pradeep.
If you could please, if I missed out on anything or misrepresented something, please correct and let us know. Thank you and for giving me this opportunity. Am I audible to everybody? Hello, am I audible? Yes, sir. yes, you are. You are. Yeah. So first thing is I thank you Plant-Based Treaty for giving me this opportunity to host a program on health basically. And for health, whatever is required has to be done. And veganism becomes a integral part of health. So, and I have been going in across length and breadth of India and conducting seminars and means informing the people that you change the diet and you will get the results. And it's a which I have experienced, I tell the people. So मैंने जो अनुभव किया वही मैं लोगों को बताता हूँ और सभी को जिन्होंने भी किया उन सभी को रिजल्ट मिला है क्योंकि हम जो बताते हैं वो कुदरत का कानून बताते हैं, लॉ ऑफ नेचर, and which is applicable to all, whatever is your belief, it doesn't change. So, and the important thing that the plant-based treaty is doing is it is interacting with the government and the organizations. और उनको जाके बोलते हैं कि भैया आप चेंज करो, डाइट चेंज करो, डिफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन में से रिफॉरेस्टेशन करो, और ये जो भी कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सर्वाइव एंड वी हैव टू गिव ए गुड हेरिटेज टू द कमिंग जनरेशंस एंड इफ दिस इज द वे वी एक्सप्लॉइट द नेचर, प्रकृति का इतना शोषण करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ही। तो यही चीज हमको समझना है और यही चीज हमको समझ के करना है। तो अभी ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ। पहला प्रश्न है कि भाई हमको वीगन वीगन लाइफस्टाइल क्यों अडॉप्ट करना है। मेरा प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कंबाइन होगा। तो पहले हेल्थ के लिए है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको वीगन बनना बहुत जरूरी है। जो चीज आप चाहते हैं कि आप देख नहीं सकते, हिंसा आप देख नहीं सकते हैं, अगर कोई आप पे करे तो आपको पसंद नहीं, तो और किसी के पे भी होनी नहीं चाहिए। हमारे स्वाद के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारी कमाई के लिए या कुछ भी हो उसके लिए ये होना नहीं चाहिए। और सब कुछ है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। अगर पर्यावरण है तो हम है, और तो हर हमको सुखी रहना है तो हमको औरों को भी सुखी रखना पड़ेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा। उनको अपने जीने को जो है उनकी लाइफस्टाइल के अनुसार उनको भी जीने का हक है, तो उनको भी जीने का मौका देना पड़ेगा। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। अभी हम दुनिया में हम आए हैं, कर्म करते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, पैसा खर्चे करते हैं, सब कुछ बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स करते हैं, एडवेंचर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो भी है, आपको पैसा कमाना है, काम करना है, ये है, घूमना है, फिरना है, सब है, लेकिन अगर हेल्दी है तो ही ये हो सकता है। अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्म के मार्ग पे जाना है, तो भी सबसे पहले हेल्दी रहना है। अगर हेल्दी होंगे तो ही ये पॉसिबल है, उसके वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए। इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है, और हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, अगर वो सही है तो हम प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति की जो क्या कैपेसिटी है, वो हमको पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं है। तो पहले हमको समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमें अच्छी रोग प्रतिकार शक्ति दी है और हमारा शरीर खुद अपने आप को डिफेंड कर सकता है और अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो इसकी संपूर्ण सुविधा है। तो दवाइयों की कम से कम जरूरत होनी चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रकृति के नियम के साथ रहेंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है और दवाइयों की कम से कम जरूरत हो सकती है।
अभी जैसा आप जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। तो यहाँ हमको समझना है चाहिए कि हमारा खान पान की असर हमारे शरीर पे भी होती है, हमारे मन पे भी होती है। यू आर व्हाट यू ईट, बॉडी एंड माइंड दोनों पे इफेक्ट होती है। आज जो है हमारा जो भी खान पान होता है, न्यूट्रिशन के लिए नहीं होता है, पोषण के लिए नहीं होता है, स्वाद के लिए हो रहा है। जो भी खाते हैं वो स्वाद के लिए खाते हैं। अगर और हमारी पूरी व्यवस्थाएं देख लो, सभी व्यवस्था स्वाद के पे ही टिकी हुई है। अभी मैं यहाँ जो भी आपको बताऊंगा सबसे पहले नेचर साइंस के हिसाब से बताऊंगा। अभी नेचर साइंस मैं क्यों बताता हूं कि ये एब्सोल्यूट साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है, इटर्नल साइंस है, मीन्स ये शाश्वत साइंस है। और इसके ऊपर का कोई साइंस नहीं है। ये सभी जीवों को लागू पड़ता है। 84 लाख जीव है तो सभी को प्रकृति के कानून लागू पड़ते हैं, उसके नियम लागू पड़ते हैं। इसमें कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हमारी मान्यताएं कुछ भी हो सकती है, हमारे धर्म के अनुसार हो सकती है, हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ हो सकती है, हमारे एजुकेशन के हिसाब से हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कानून तो प्रकृति का ही चलता है, कुदरत का कानून ही चलता है। तो मैं पहले आपको सब कुदरत के कानून से बताऊंगा कि कुदरत का कानून क्या है। तो हमारी कोई भी मान्यता है, मैं कोई भी हिंदू हूँ, बौद्ध हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जैन हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, कुछ भी हूँ, प्रकृति का विज्ञान तो सभी को लागू पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो समझना आसान हो जाएगा। और हमारी जितनी भी मान्यताएं लेके घूमते हैं परंपरा की, धर्म के नाम से, मॉडर्न साइंस के नाम से, वो सबको साइड में पार्क कर दीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। प्रकृति का विज्ञान समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैन मेड साइंस में क्या प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास मैन मेड साइंस आज बहुत है, वो समय समय के साथ चेंज होते रहता है। एक दवाई जो आज 100 साल पहले थी आज उसका आउटडेटेड है। 10 साल पहले की जो वैक्सीन थी आज उसका नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज है जो कुछ सालों पहले जो मानी जाती थी वो आज नहीं है। और उस पे जो है बहुत सारी लॉबीज का इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। हमारी जो ताकतवर लॉब जो रूलर्स है, लॉबीज है, वो उसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन जो कमर्शलाइजेशन हो चुका है। और दूसरा जो है स्वाद होता है, तो फिर हमको सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैन मेड साइंस है वो कमर्शलाइज हो चुका है, इसलिए सत्य जो है यहाँ से लुप्त हो रहा है। इसीलिए प्रकृति का विज्ञान है वो शाश्वत है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी ये अद्भुत शरीर हमको मिला है, देख लीजिए एक साथ लाखों ही चीजें हो रही है, हमको पता नहीं लेकिन अपने आप से हो रही है। और ये सब कुछ अपने नियम से हो रहा है। तो ये जो चीज है, इतना अद्भुत शरीर मिला है, तो हमको स्वस्थ रखने के लिए बना है। और कितना अद्भुत शरीर मिला है, 50 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स मीन्स जो हमारे जो दिमाग में जो जिसकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, रीवायरिंग कर सकते हैं, हम हमारा स्वभाव चेंज कर सकते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है। 60 ट्रिलियन सेल्स की फौज दी है। तो 60 ट्रिलियन सेल जो है हमारे को पोषण करते हैं और हमको जो है स्वस्थ रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। और ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है। हमारी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, वो हमको स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं। ब्रेन भी करता है, ब्रेन और जो गट है वो दोनों हम एक दूसरे के साथ तालमेल हो जाता है, तो हमको स्वस्थ रखने की पूरी मेहनत करते हैं। तो इतना अद्भुत शरीर मिला है, इतनी बड़ी फौज मिली है हमको स्वस्थ रखने के लिए, ये हमको समझना जरूरी है। अभी आज की तारीख में ये देख लीजिए, ये जो है इंदौर की एक रिसर्च आई है, उसको आप देख लीजिए। इतना अद्भुत शरीर मिलने के बावजूद बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज है और जैन समाज है। मीन्स पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पे है। नॉन वेजिटेरियंस भी है, वेजिटेरियंस भी है, जैन समाज भी है, पढ़े लिखे भी है, डॉक्टर्स भी है, सब कुछ है। इतनी डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन है। सबके खान पान अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, मान्यताएं अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, सभी बीमार है।
परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन सभी बीमार है। आप देख लीजिए, हर कोई अपना सिस्टम को ग्लोरीफाई करता है, ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन फिर भी बीमारियां तो सभी में है। तो ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई, हम कहते हैं कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है, साइंटिफिक है, ये है वो है, तो इतनी बीमारियां क्यों? ये प्रश्न होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध सभी बीमार है। तो ये सब चिंतन मनन का विषय है, पहले हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। छोटे बच्चे से वृद्ध सभी बीमार है। और बीमारियों के देख लीजिए वेरिएशंस, सभी को बीमारियां हैं, परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन सभी को बीमारियां हैं। वही डायबिटीज, वही ब्लड प्रेशर, वही कोलेस्ट्रॉल, वही वही सभी सभी बीमारियां एक दूसरे के साथ में है। तो इतनी सारी डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल है, डाइट है, फिर भी इतनी सारी बीमारियां क्यों? तो ये भ्रम छोड़ दीजिए कि भाई हमारा धर्म में ये खाने को कहा है तो इसका ये इंपॉर्टेंस है, ये नहीं खाने को बोला है, वो खाने को बोला है, लेकिन सब करने के बावजूद आपकी बीमारियां तो एक समान है। तो कौन से कानून, क्या कुदरत के कौन से कानून हमने तोड़े हैं जिसकी सजा है बीमारी? कहीं ना कहीं हमने प्रकृति का विज्ञान तोड़ा है, उसकी सजा है ये बीमारी। ये हमें समझना पड़ेगा। अभी ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज है, आप देख लीजिए, आप सभी को जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। इनके पास सब कुछ था, धन थी, दौलत थी, नेम था, फेम था, रुपया पैसा सब कुछ था। दुनिया के किसी भी कोने में जाके कैसे भी चाहिए वो ट्रीटमेंट ले सकते थे। साधु संत महात्मा के पास जाके उनके आशीर्वाद ले सकते थे, ये कर सकते थे, वो करते सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन वो सभी बीमारियों से गए। सब कुछ होने के बावजूद भी वो बीमारी से गए, ये हकीकत है। आप सभी को जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस भी है। हमारे जो है झुनझुनवाला जो सर जो है, जिन्होंने शेयर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी बहुत सारा उन्होंने नाम किया, लेकिन वो जो है शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट किया, बहुत कमाया, लेकिन हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आज उनकी हालत क्या है देख लीजिए। और बाकी पॉलिटिशियंस है, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत कुछ था, लेकिन अंत में उनकी अब बीमारियों के कारण ही उनको जाना पड़ा। कोई यहाँ पे देखिए, मोहम्मद अली जो सबसे बड़ा बॉक्सर था, 33 की एज के बाद पता नहीं कहाँ चले गया, 66 की एज में पता चला ही इज नो मोर। अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी से गए। हमारे बॉम्बे के एटीएस चीफ हिमांशु रॉय, वो खुद कैंसर की बीमारी से गए। बाकी वो इतने मोटे और तगड़े थे, लगता है कि ये तो कितने हेल्दी है। तो ये सभी बीमारी से गए, तो क्यों बीमारी से गए? क्या गलतियां हो सकती है? कहीं ना कहीं इसकी चिंतन मनन करने की हमको जरूरत है। अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वी आर मिजरेबली फेल्ड इन फूड साइंस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड मैनमेड साइंस। अभी मैंने जितना भी बताया उसमें देख लीजिए, हर एक की अपनी अपनी ट्रेडिशंस अलग है, रिलीजियस बिलीफ्स अलग है, और हर कोई मैनमेड साइंस फॉलो कर रहा है। आज हर कोई यही करता है, वो भले एलोपैथी ले, आयुर्वेद ले, या होम्योपैथी ले, या XYZ जो भी ट्रीटमेंट ले, वो सभी मैनमेड साइंस है। मनुष्य ने बनाया हुआ है, अपनी समझ के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है। लेकिन वो सब करने के बावजूद कोई हमें अच्छी हेल्थ नहीं मिली, दुख है, बीमारी है। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ हमारे से कोई गलती हो चुकी है। सॉरी प्रदीप जी, आपका पीपीटी नहीं दिख रहा है। पीपीटी नहीं दिख रहा है, सॉरी, नहीं। जस्ट अ मिनट। अभी दिख रही है? हेलो, नहीं, इज इट ऑन नहीं अभी सीन? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। जस्ट जस्ट मिनट। नाउ हाँ, इज इट सीन? अभी यस, इट्स कमिंग थ्रू नाउ, यस, अभी दिख रहा है। या फाइन।
Sorry, I'll just sorry for this thing. You should have told me in the earliest. Then it would have been easy for me. Anyway, In the beginning it was showing, then after that I thought maybe you switched off, but yeah. नहीं नहीं नहीं. I someone commented, that's what I realized. Okay. Yeah, नहीं नहीं. Fine. The PPT is gone again. Just let me do it. Okay. Just a minute. वैसे दिख रही है? हेलो. नहीं नहीं. हाँ अभी दिख रहा है. नाउ सीन दिख रहा यस है? यस यस. ओके. ये आपने कौन सा जहां से नहीं देखा मुझे बता दीजिए. This is to give you the feeling that yes, we have got miraculous healing power if we follow the law of nature. जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन. यू आर वॉट यू ईट. बेसिकली हम लोग जो भी खाते हैं टेस्ट के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए तो हम खाते ही नहीं है. एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस. हेलो. आपका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन आपका वीडियो ऑफ है क्या? मेरा जस्ट अ मिनट. या. हाँ. ओके. नो, इट्स गॉन अगेन. Yes, ओके. now it's visible. सॉरी. Okay now. Yeah. सो बेसिकली व्हाट वी आर ईटिंग इज फॉर टेस्ट, नॉट फॉर न्यूट्रिशन. तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. न्यूट्रिशन को हमने एक सेकेंडरी सब्जेक्ट बना दिया. प्राइमरी है टेस्ट होना चाहिए. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम्स हैव अराइव्ड. और उसके लिए हम कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं. नाउ मैंने जो बताया है कि हमें प्रकृति का विज्ञान क्यों, और मैं यहाँ जो भी बताऊंगा नेचर साइंस के हिसाब से बताऊंगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई नेचर साइंस. क्योंकि ये एब्सोल्यूट साइंस है, अल्टीमेट साइंस है, इटर्नल साइंस है. और इसके नियम से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है. ये पृथ्वी चल रही है. सभी जीव जितने भी है वो उसके नियम से चल रहे हैं. वो मनुष्य हो या सूक्ष्म कीटाणु हो, वो उसके नियम से चल रहे हैं. तो उसको समझना हमें जरूरी है. अभी मैन मेड साइंस की प्रॉब्लम क्या है कि वो समय के साथ चेंज होते रहता है. रूलर्स है, लॉबीज है, उसकी इफेक्ट, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है. वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से सब चेंज होते रहता है. और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टेस्ट के दीवाने हैं. टेस्ट के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है. क्योंकि ये मनुष्य का शरीर है, अद्भुत शरीर है. हजारों लाखों चीज एक साथ हो रही है और हमको कुछ पता ही नहीं है. इसलिए सबको अच्छी व्यवस्था प्रकृति देती है हमें स्वस्थ रखने के लिए. इतना अद्भुत शरीर मिला है. 50 बिलियन न्यूरॉन्स हमें दिए गए हैं. न्यूरॉन्स का मतलब है जो आप प्रोग्राम करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हो. मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है. 60 ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स दिए हैं. हर एक सेल जो है हमें स्वस्थ रखने के लिए पूरी मेहनत करती है. इतनी बड़ी फौज है हमारे पास. ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है. गट बैक्टीरिया मीन से सेकेंड ब्रेन बताया जाता है. तो ये ब्रेन और बैक्टीरिया वो दोनों हमको जो है स्वस्थ रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं. तो इतनी संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने हमें दी है स्वस्थ रखने के लिए. लेकिन फिर भी ज्यादातर हम सभी बीमार हैं. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है,
वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज और जैन समाज की आपको यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज वाइज कौन कितने बीमार है। इतनी डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल है। कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, कोई पढ़े लिखे लायंस क्लब इंदौर के मेंबर्स है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वहाँ सभी मेडिकल फील्ड के हैं। और बाकी महेश्वरी समाज, वैष्णव समाज और जैन समाज, सभी की डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, बिलीफ्स अलग है। हर कोई अपनी सिस्टम को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सभी बीमार हैं। क्यों? छोटे बच्चे से वृद्ध देख लो, परसेंटेज कम ज्यादा जो भी होगा, लेकिन सभी बीमार हैं। बीमारियां देख लीजिए, सभी में वही बीमारियां हैं। और आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल सभी में ज्यादा है। भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्यों आता है, ये हमको समझना पड़ेगा। आगे अगर जैसे प्रोग्राम होगा, हम वो बताने की कोशिश बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल कब ज्यादा आता है। ये जितने भी सेलिब्रिटीज है आप सभी को जानते हैं, सभी को पहचानते हैं। इनके पास सब कुछ था, तन मन धन, नेम फेम, रिसोर्सेस सब कुछ थे। दुनिया के सभी किसी भी कोने में जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते थे। पूरे अस्पताल के अस्पताल खरीद सकते थे, इतने धन दौलत थी उनके पास। साधु संत महात्मा के जाके उनके आशीर्वाद भी ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आज ये सभी हमारे बीच में नहीं है और सभी बीमारियों से गए। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि कितने भी पैसे हो, बीमारियों से अगर हम अपना संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी गति जो है सदगति तो नहीं होगी, दुर्गति होगी। तो ये हमको समझना चाहिए, इसलिए स्वस्थ रहना सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। अभी यहाँ पे मैं एक बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं। वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन फूड साइंस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, रिलीजन्स एंड मैनमेड साइंस। भी यहाँ पे इतना भी जो भी मैंने बताया, यहाँ देख लीजिए कि सब ट्रेडिशंस अलग अलग है, रिलीजन्स भी अलग अलग है। मैन मेड साइंस में आप जो भी एलोपैथी की दवाई लेते हो, आयुर्वेद की दवाई लेते हो, होम्योपैथी लेते हो, यूनानी लेते हो, या कोई भी XYZ ट्रीटमेंट लेते हो, सभी बीमार है। बीमारियों से टेम्पररी मुक्ति मिली होगी, लेकिन अंत जो है हमारा, जो एंड फेज है, वो सभी बीमारियों से करीब करीब गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जागने की जरूरत है कि क्या हमें बीमारियों से ही जाना है या स्वस्थ भी जा सकते हैं। आज का ये इक्वेशन है, पैसा परमेश्वर से महान हो चुका है। पैसा परमेश्वर से महान हो सकता है, महान हो गया है। संपत्ति जो है संपत्ति के लिए हम स्वास्थ्य को भी गंवाने को तैयार है, और स्वाद के लिए हम स्वास्थ्य भी गंवाने को तैयार है। इस हमारा जो है पैसा और स्वास्थ्य दोनों के पीछे ही हमारा जो है पूरी मेहनत है। और इसके लिए जो सबसे अनमोल चीज जो हमको मिली है, हमारा स्वास्थ्य, वो घुमाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो ये जागने की जरूरत है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जैन हो, सभी की डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, मान्यताएं अलग है, लेकिन सबकी बीमारियां एक समान है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी मिस्टेक, गलतियां की थी जिसका परिणाम है कि हम सभी बीमार हैं और हमारी बीमारियां करीब करीब एक समान है। अभी हम बीमार क्यों होते हैं? बीमारियां हजारों टाइप की है, लेकिन मुख्य कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। शरीर में एकत्रित हुआ मल। अभी हमारी शरीर में ये जो टॉक्सिन्स जमा क्यों होते हैं, तो उसका जो बड़ा कारण है अननेचुरल डाइट एंड लाइफस्टाइल। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग मीन्स खाते जाते हैं, वहां से मल विसर्जन नहीं होता, फिर भी खाते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा बीमारियों का कारण है। और ओवर ईटिंग है, स्वाद के लिए हम ओवर ईटिंग करते रहते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे खाने पे। सुबह उठे रात को सोए, खाते खाते ही रहते हैं, मौका मिला खाते जाओ खाते जाओ। और उस सबसे बड़ा भी आज जो बड़ा कारण है और भी है, वो स्ट्रेस है। छोटे बच्चे से हो या युवा हो या वृद्ध हो, सभी को तनाव है।
और तनाव भी एक बहुत मोटा मोटा कारण बन चुका है हमारी बीमारियों का और दुखों का। अभी अननेचुरल डाइट में क्या क्या आता है? एनिमल बेस्ड फूड, उसमें जो है मांसाहार आता है, अंडे आते हैं, मच्छी आता है, हनी आता है, दूध और दूध प्रोडक्ट आते हैं। और आज की तारीख में तो जंक फूड भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे विचार और हमारे इमोशंस भी है, एक बड़ा कारण है। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि गाड़ी पेट्रोल की है, लेकिन अगर हम केरोसिन उसमें मिलावट करके चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकेगी, वाइब्रेशन आएगा, उसका पिकअप कम हो जाएगा, गाड़ी का वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हीटिंग चालू हो जाएगा, रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है, रिड्यू उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और यात्रा जो है उसमें कोई मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। कारण क्या है? अननेचुरल फ्यूल डाला है। जिसके लिए ये गाड़ी बनी थी और जिसके लिए वो जो उसका ओरिजिनल था वो पेट्रोल था, उसकी जगह हमने केरोसिन मिक्स करके डाला। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अननेचुरल फ्यूल या अननेचुरल डाइट हम लेते हैं, उसके कारण ये अनेक बीमारियों हमें का अनुभव करना पड़ता है। ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी ग्रह पे कहते हैं कि 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है। कुछ जीव जो है पानी में है, कुछ जीव जमीन पे है, कुछ जीव हवा में है। अभी जो पानी में जीव रहता है उसकी संपूर्ण व्यवस्था पानी में की गई है। वो सांस भी पानी में लेगा, वो सांस भी पानी में लेगा, अपना खान पान भी पानी में करेगा, अपनी वंश वृद्धि भी पानी में करेगा, और अपना बचाव भी पानी में करेगा, और अंत भी पानी में होगा। वो अपनी सांसों सांस भी पानी में लेता है। बाकी जो जीव है, कुछ जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे है, कुछ जीव हवा में है, कुछ जीव अति सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ जीव इतने महाकाय है कि अगर नजदीक खड़े रहे तो पूरे देख भी नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज है। कुछ जीव का लाइफ जो है, आयुष्य जो है, कुछ क्षण का है। और कोई जीव है उसका आयुष्य 100 100 साल, 200 साल, 300, 400, 500 साल तक का भी है। जैसे बहुत सारे पेड़ है, वो 400 500 1000 साल तक भी जीते हैं, और इतने महाकाय भी है। तो प्रकृति ने सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था की है, जन्म से लेकर अंत तक। तो ये हमें समझना चाहिए कि प्रकृति ने हम सबकी व्यवस्था की है। तो सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य की भी कोई व्यवस्था होगी। अगर मनुष्य उसके नियम के अनुसार चलेगा तो वो सब कुछ अनुभव कर सकता है। वो अपनी दिव्यता का भी अनुभव कर सकता है। अपना जो है, जिस मनुष्य भाव मिला है वो सुख शांति के लिए मिला है, दिव्य अनुभूति के लिए मिला है, आत्म अनुभूति के लिए मिला है। कहीं ना कहीं वो मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। लेकिन हुआ क्या है? सबसे बुद्धिशाली जीव जो मनुष्य है, उसको प्रकृति ने बनाया था एज ए ट्रस्टी। आप पर्यावरण की रक्षा करना, सभी जीवों की व्यवस्था तो प्रकृति ने की है। लेकिन अगर कोई जीव तकलीफ में आ गया, पीड़ा में आ गया, तो आप उसकी सहाय करना, एज ए ट्रस्टी आप उसको मैनेज कर लेना। तो इसके लिए मनुष्य को ये बुद्धिमत्ता दी थी कि भैया इसको यूज करके सभी जीवों की रक्षा करें और पर्यावरण की रक्षा करें। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग किया। वो अपने आप को ये प्रकृति का जो है बॉस समझ बैठा, मालिक समझ बैठा, और उसने सोचा कि ये सभी जीव मेरे लिए बने हैं, मैं जब चाहे तब इनको काट सकता हूँ, मार सकता हूँ, खा सकता हूँ, इनका मैं व्यापार कर सकता हूँ, इनकी बस्ती कम कर सकता हूँ, इनकी बस्ती बढ़ा सकता हूँ, इसमें से मैं दवाइयाँ भी बना सकता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट भी कर सकता हूँ, मेरी सिक्योरिटी भी कर सकता हूँ, जो चाहे मैं इनका शोषण कर सकता हूँ। और इसके कारण मनुष्य जो है, अहंकार के कारण, ईगो के कारण,
ये सब करने लगा, और परिणाम क्या हुआ? ये सभी जीवों के साथ तो हिंसा हो गई, लेकिन वो खुद बीमार हो गया, वो खुद दुखी हो गया, वो भी एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगा है। तो कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए कि हमारा जो अल्टीमेट पर्पस था वही लॉस्ट हो चुका है। अभी इतनी सारी डाइट सिस्टम होती है, सबसे जो है, एक जो है ब्रिदेरियंस होते हैं, जो सालों साल तक खाते नहीं, पानी नहीं पीते हैं, खाली हवा और सूर्य की गर्मी पे रहते हैं, उसको ब्रिदेरियंस कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो खाली पानी पे रहते हैं, मीन्स पानी लेते हैं, हवा लेते हैं और सूर्य की गर्मी लेते हैं, वो भी है। और कुछ जो है, वो जो है प्रकृति ने जो बनाया है पंच तत्वों में से, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, पत्तियां हैं, वो खा के रहते हैं। और आगे जाएंगे तो कुछ जो है नॉन वेजिटेरियंस भी है, कोई वेजिटेरियंस भी है। वेजिटेरियंस में भी कोई जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, लैक्टो वेजिटेरियंस कहा जाता है। बाकी आज तो अंडे को भी वेजिटेरियन गिनने वाले हैं, मच्छी को भी वेजिटेरियन गिनने वाले हैं। और बाकी आज की जो एक नया जो वेजिटेरियन समाज जो पैदा हुआ है, जिसे हम वीगन कहते हैं, वो कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेते हैं, किसी भी स्वरूप में नहीं लेते हैं, और उसमें से बनी हुई चीज को भी नहीं लेते हैं, और इस व्यवसाय को बढ़ावा मिले ऐसी कोई भी एक्टिविटी के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए वीगन्स के लिए, जो पर्यावरण की रक्षा सोचते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचते हैं। बाकी जो है कुछ घर का बनाया हुआ रहते खाने वाले हैं, बाहर का नहीं खाते, कोई जंक फूड खाने वाले हैं, कोई पैक फूड टिन फूड खाने वाले भी है, और कुछ नशा भी करते हैं, टॉक्सिक डाइट भी लेने वाले भी है। तो इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की डाइट सिस्टम है। लेकिन आज जो है हमको तो जो है हमारे हेल्थ के बारे में है, क्या है, तो हमको समझना चाहिए कि भारत जो है एक मूल में शाकाहारी देश था। भारत जब आजाद था तब करीब करीब 80% पॉपुलेशन वेजिटेरियन था। आज जो पूरा ग्राफ उल्टा हो चुका है, करीब करीब 77% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन हो चुका है। वेजिटेरियन पॉपुलेशन काफी कम हो चुका है और नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न है, ऐसा क्यों? आज पूरे विश्व की बात करें तो 800 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन है। 100 करोड़ से ज्यादा जानवरों को मारा जाता है हमारे खान पान के लिए। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एक दिन में 9 लाख गाय, काउज एंड बफेलोस, गाय और भैंसों को मारा जाता है। एक दिन में 9 लाख। अन इलीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये जो लीगली अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ 30 लाख गोट्स, बकरी, और उसको मारा जाता है। 1,60,000, वो एक घंटे में है। 1,60,000 सूअर को मारा जाता है एक घंटे में। 1,40,000 मुर्गियों को मारा जाता है एक मिनट में। पहले दिन में था, फिर घंटे में आया, मिनट में आया। और 1 लाख मछलियां मारी जाती है हर एक सेकंड में। इतनी हिंसा हम करते हैं हमारे खान पान के लिए, हमारी स्वाद की पूर्ति के लिए। क्या लगता है हमको, ये पशु हिंसा कम होनी चाहिए कि नहीं? अगर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं और हम क्या कर सकते हैं, इस पे हमारा चिंतन मनन होना चाहिए। तो प्रकृति के विज्ञान के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा शरीर पशुजन्य खुराक के लिए बना है, वो फिर सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये प्रकृति के विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। आप समझ खुद अपना दिमाग ओपन करके सोचेंगे तो आपको भी लगेगा यस, ये सही है। कोई भी मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तब उसकी आंखें बंद होती है। शाकाहारी जीव जब पैदा होता है उसकी आंखें खुली होती है। मनुष्य भी जब पैदा होता है तब उसकी आंखें खुली होती है। कोई भी मांसाहारी जीव है, उसका मुंह बहुत खुलता है, उसके दांत नोकीले होते हैं। शाकाहारी जीव होता है, उसका मुंह कम खुलता है,
और उसके दांत होते हैं वो ज्यादातर चबाने के दांत होते हैं। मनुष्य का भी यही है, उसका मुंह कम खुलता है और उसके जितने भी दांत है ज्यादातर सभी चबाने के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव है, रात को वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। शाकाहारी जीव जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मनुष्य भी आंख से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसके दांत, नाखून जो है नोकीले होते हैं। उसका काम होता है कि वो जानवर को मारे, गिराए, फाड़े और खाए। और कहीं पे अगर उसको चढ़ना है, ये करना है, तो वो ग्रिप लेके कर सकता है। शाकाहारी प्राणी के जो भी नाखून है, वो जो है वो अपने सेफ्टी के लिए है। मनुष्य के भी नाखून है, वो अपनी सेफ्टी के लिए है, किसी को मारने फाड़ने के लिए नहीं है। कोई भी मांसाहारी जीव है वो पानी जो है अपनी जीभ से अंदर लेता है। शाकाहारी जीव जो है पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। अभी कोई भी शाकाहारी जीव है उसकी आंतें लंबी होती है। मांसाहारी जीव है उसकी आंतें छोटी होती है। मनुष्य का जो है उसके भी आंतें बड़ी होती है। शाकाहारी जीव जो है उसका जो है वो अल्कलाइन डाइट के लिए बने हैं। उनकी सलाइवा भी अल्कलाइन है, उनका ब्लड का पीएच भी अल्कलाइन है। मनुष्य का भी जो शरीर है अल्कलाइन डाइट के लिए बना है, और उसका पीएच भी जो है ब्लड का हो या सलाइवा का हो वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन्स क्षारीय। और जो जितने भी मांसाहारी प्राणी है वो एसिडिक डाइट में, उनका एसिडिक डाइट हो मीन्स सलाइवा होता है। कोई भी मांसाहारी जीव में प्रकृति ने उतनी ताकत दी है कि वो जानवर के पीछे दौड़े, उसको पकड़े, उसको गिराए, उसको मारे, उसको फाड़े और फिर खाए। तो इसमें उनमें उनमें वो जुनून होना चाहिए, वो गुस्सा होना चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं। शाकाहारी जीव जो है बड़ी सुख शांति से आराम से चल के जाते हैं। जहां भी उसका खुराक होता है वो धीरे धीरे लेके खाते 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 जाते हैं और फिर धीरे चबा के वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। मनुष्य भी जो है वो अपना खुराक के पास कोई एग्रेशन करने की जरूरत है, अपने आप से जा सकते हैं। जहां भी फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, पत्तियां है, वो लेके खा सकता है। कोई भी मांसाहारी जीव जो है वो अपना जो है स्वेटिंग जो है वो अपनी जीभ से करता है। और शाकाहारी जीव जो है वो अपनी चमड़ी से करता है। मनुष्य भी जो है वो उसकी जो स्वेटिंग है न पसीना है वो चमड़ी से करता है। अभी ये देखिए मांसाहारी प्राणी को प्रकृति ने कितनी ताकत दी है। अपने जितना ही वजन का प्राणी को पकड़ के उसने वर्टिकल क्लाइंबिंग किया और उसको ऊपर जाके उसने रखा। इतनी ताकत प्रकृति ने दी है। अपने जितना वजन उठा के वर्टिकल क्लाइंबिंग करने की ताकत दी है। तो प्रकृति ने मांसाहारी जीव को ताकत दी है, उसको मांसाहारी जीव खाने के लायक बनाया है। उस जानवर को मारने के लिए, उसको खाने के लिए, सभी के लिए उसने व्यवस्था की है और उसको पचाने की भी व्यवस्था की है। तो हर जीव को अपनी अपनी व्यवस्था दी है। एक शाकाहारी जो घोड़ा है, गाय है, भैंस है, उसको अपनी व्यवस्था दी है पचाने की, खाने की। मांसाहारी को अपनी व्यवस्था दी है। तो अभी हमको समझना है कि हमारा हमको क्या है। मेरा एक प्रश्न है, आप जितने भी यहाँ पे है, क्या आप एक मुर्गी को पकड़ सकते हो? मुर्गी को खा सकते हो? मुर्गी को पकड़ सकते हो? पहली बात, पकड़ सकते हो तो उसके पंख तोड़ सकते हो, उसको फाड़ सकते हो। फाड़ोगे तो वैसे खा सकते हो क्या? मैंने बहुत सारे मांसाहारी लोगों को पूछा है, मेरे मित्र है उनको भी पूछा है।
तो बोलता है नहीं नहीं, ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोलता है तुमको प्रकृति ने वो ताकत ही नहीं दी है, व्यवस्था ही नहीं दी है, लेकिन कोई आपको काट के प्लेट में लाके दे दे तो खाएंगे? तो बोलता है हाँ खाएंगे। मैं बोला उसमें पकाया नहीं तो खा सकते हैं? तो बोलता है तो नहीं खा सकते हैं। तो पकाने के बाद मैं बोला क्या करना पड़ेगा? तो बोला पकाने के बाद उसमें मसाले डालेंगे तब खाने लायक बनता है। और पकाने के बाद मसाले डालने के बाद वो नशीला बन जाता है, इसीलिए आप खाते हैं, ओरिजिनल आइटम का स्वाद ही नहीं है। तो ये फिर आप जो है अंडे हो, चिकन हो, मच्छी हो, बकरे हो, सुअर हो, या कोई भी चीज हो, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए कि बाकी प्राणी जो है उसको ओरिजिनल फॉर्म में खाते हैं, कोई उसको पका पका के काट पीट कर नहीं खाते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अभी ये सभी जी बिजनेस में जो हिंसा है वो देखने की कोशिश करेंगे। अभी ये अंडे की इंडस्ट्री की हिंसा देख लीजिए। ये देखिए, उनको पहले तो इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधान करवाया गया। ये इंजेक्शन देते हैं, अभी मेल फीमेल को अलग कर रहे हैं। करो की हत्या, उनका काम नहीं है तो मार दिया, अंडे नहीं देंगे इसमें। क्रशिंग करके देखिए कितनी पीड़ा होती है, उनको मारते हैं, बच्चे छोटे बच्चे को पानी में डाल दिया, उनकी नोक काट दी, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य कुछ भी करने देता है। एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये फिर एकदम केज में रखते हैं। और फिर ये देखो उनको जबरदस्ती अंडे देते हैं, तब तक उनको पालेंगे, जब नहीं देंगे तो उसको खत्म कर देते हैं। तो ये हिंसा देख लीजिए। अभी ये मछली उद्योग की हिंसा देख लीजिए। देखिए कितनी समुंदर से पकड़ पकड़ के लाते हैं, और फिर ये देखिए पकड़ पकड़ के लाते हैं और उसको जिंदा मारते हैं। कितनी हिंसा, कितनी पीड़ा। ठीक। और फिर समुंदर में, कई समुंदर में जिंदा जिंदा जानवर उसको गर्म पानी में तलने के लिए डाल देते हैं। ये हनी इंडस्ट्री है, देख लीजिए, करोड़ों हनी बीस को मरना पड़ता है, मधुमक्खी को मरना पड़ता है, तब जाके हमको थोड़ा सा शहद मिलता है। और कितना किलोमीटर चलते हैं तब जाके वो अपने लिए शहद जमा करती है, और हम लोग उसको छीन लेते हैं, उसको मार देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी जानवर का हमने शोषण किया है, किसी की लाइफ 25-25% कर दी है, किसी की 7% है, किसी की 4% है, किसी की 2% है, किसी की 9% है। जब तक स्वार्थ है हम पालेंगे, बाद में उसको मार के फेंक देंगे। तो ये हमको समझना है। आइंस्टाइन पेन वेव थियरी है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेंगे कि ये जितने भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, वो भूकंप हो या बाढ़ हो या जो भी नेचुरल सूखा पड़ता है, कहीं ना कहीं ये जो सामूहिक हत्याएं होती है ये सभी जीवों की, वो जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है उसकी गूंज। और वो गूंज कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा के हिसाब से आती है। तो ये पूरा रिसर्च चालू है इस पे, आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा इसको। अभी हमारा ओरिजिनल फूड जो है वो प्लांट है। तो जितना हम ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हैं उतना अच्छा है। आप प्लांट खा के भी जी सकते हैं। अपने प्लांट खा के आपने गाय को दिया, बैल को दिया, बकरी को दिया, इसको दिया, उसको दिया, फिर उसको मार के खाने की जरूरत नहीं है। आपका ओरिजिनल डाइट है वो डायरेक्ट आप ले लीजिए, तो ये आपके लिए सही होगा और यही पर्यावरण की रक्षा होगी। अभी जया जी, हेलो जया जी, हाँ प्रदीप जी। अभी मैंने जो है नॉनवेज का कवर कर लिया है, और ओके। अभी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का करना है, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके। तो क्या करेंगे नेक्स्ट? कैन वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेमिनार? Yes, we can continue next time. We can keep a session just on dairy.
डेयरी Yeah, yeah, इंडस्ट्री that में will क्या be, क्या? that will be mainly on dairy, and that will be the most important topic. And I speak हाँ. over and with various angles. मीन्स यस. यहाँ पे डेयरी पे जो है मैं नेचर साइंस तो बताता ही हूँ, और हाँ. इसके जो भी है प्रकृति का विज्ञान क्या है, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेयरी ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यस. इमोशनल हेल्थ, वो भी जानते हैं। इसमें वायलेंस कितनी होती है वो भी देखते हैं। और फिर जो है हमारे स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र में इसका सत्य क्या लिखा गया है, दैट ऑल्सो वी सी। मॉडर्न साइंस भी आज भी क्या बोल रहा है, प्लांट बेस्ड वीगन डाइट की बात कर रहे हैं, तो वो सब पूरा इंक्लूड होगा उसमें। और काफ़ी, और आज की तारीख में मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सभी एडल्ट्रेटेड है और आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो वो सब टॉपिक हम कवर करेंगे। तो व्हाट आई फील Can इज you अभी, just briefly touch on, can you just briefly tell to the people who have joined कि dairy consume करने से what are the what are the harmful effects on our body, just so that people get an idea. बाकी we'll speak extensively later. आई श्योर दैट। Yeah. सी देखिए, ये जितनी भी बीमारियां आपको देख रही है, एसिडिटी हो, आईबीएस हो, पेट की बीमारी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मोटापा हो, कैंसर हो, हड्डियों के प्रॉब्लम हो, नी जॉइंट हो, उसमें डेयरी हैज प्लेड मोस्ट वाइटल रोल, ये बीमारियों को बढ़ाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। मिल्क इज कार्सियोजेनिक, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। और बाकी ये जितनी भी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हैज प्लेड ए वाइटल रोल। और जैसे मैंने बताया कि वी आर देयर, वी आर क्योरिंग द पेशेंट्स विदाउट डिसीज, मीन्स विदाउट मेडिसिन, मोस्टली विदाउट मेडिसिन जो करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच दे हैव टू क्विट, because dairy is the most unnatural thing which we are taking, and human species is the only species consuming animal milk all throughout the life, because nature has created milk as an infant diet। जो इन्फेंट डाइट है उसको हमने एडल्ट डाइट बना दिया, और एडल्ट डाइट बना के दिन में इतना सारा रोज कंज्यूम करेंगे तो इतनी सारी बीमारियां आनी ही है। और जिनको भी हमने दूध और डेयरी प्रोडक्ट छुड़वाया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव गॉट मिराकुलस रिजल्ट्स। सो इट्स अ फैक्ट। और ये देख लीजिए, जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के वीकर नोड से वो बीमारी बाहर आएगी। तो कौन सी बीमारी आएगी, जहां भी आपकी बॉडी की वीकर नोड है वहां से बाहर आएगी। So this is what I can tell you as far as the health science is concerned in short। तो ये सभी चीज है हमको समझनी है। So this is what we can do। And अभी किसी के प्रश्न है तो we can take over the questions answers if anybody has that questions। Fine। Thank you very much, I'll Pradeep stop। ji. Yeah, yeah। Fantastic. Yeah, yeah, that's perfect. Does anyone have any questions to ask Pradeep ji? He's a storehouse of knowledge, so please ask away. Pradeep ji, Yeah, I wanted to ask that this, do you have the recording of this, what you have said, so that we can post it in the yeah, non-vegan yeah, group? yeah. That recording I will form it and put it on YouTube and send it, give Yeah, in the so that we can beginning. send it to the non-vegan groups. Yeah, yeah, yeah. Very much, very much. Yeah. Thank you. And understand one thing, whatever I have told you is without any prejudice or bias, based on laws of nature. Yes, yes. So because though no emotions will come when I'm talking of nature, and otherwise emotions come, अरे हमारा धर्म है, ये बोलता है हमारी मान्यताएं ये, नो, because this is absolute science। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। सर, अपन जैन है, आप भी जैन हो, शायद मैं भी जैन हूँ। तो अपने महाराज साहब इतना घी दूध सब खाते हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं नहीं, देखिए महाराज जैनों के लिए, मैं तो जैन महाराज साहबों के बीच में रहा हूँ, उनके भी मैंने डाइट चेंज करवाई है, उनको भी मिराकुलस रिजल्ट हुआ है। मैं जैनों के लिए तो स्पेशल प्रोग्राम्स करता हूँ, और उनके लिए जो है मैं सूत्र के साथ बताता हूँ, व्हाट भगवान महावीर स्वामी हैज सेड एंड व्हाट वी आर डूइंग इज टोटली इररिलेवेंट। बट नहीं है ना, महाराज साहब तो अभी वर्षी तप में पूरा घी, सब मुझे घी पता घी। है, वर्षी तप में यही करते हैं, उद्यान तप में यही करते हैं, आई एम अवेयर ऑफ इट। तो मैं वहां भी जाके उनको बताता हूँ, कुछ महाराज साहब समझते हैं, उन्होंने पर्सनली चेंज करके उनको मिराकुलस रिजल्ट मिला है। कुछ महाराज साहब जो है समझते हैं, करते हैं, लेकिन पब्लिक में बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। वो डरते हैं, बोलते हैं ट्रेडिशन के खिलाफ बोलेंगे तो हम फेंके जाएंगे। सो दे हैव द फियर। तो जो भी है हमारा काम है बताते रहने का। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यस, द रेवोल्यूशन हैज टू कम, और ये चेंज लाना बहुत जरूरी है।
Like they can't That will understand कि come. इतने cows और नहीं नहीं buffaloes आएगा, देखिए कठोर है मेहनत उनके करनी लिए. पड़ेगी। ट्रेडिशंस के खिलाफ बोल रहे हैं, टेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सत्य है वो कड़वा भी रहता है, कठोर भी रहता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी समझते हैं, धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये जो माहौल होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अनदर 20-25 years, यू विल फाइंड miracles हैपनिंग। दैट इज वन टिकट फ्रॉम मी। Yeah, but this ये is a simple thing, no, sir, that इट गाय इज और वेरी भैंस सिंपल कटते थिंग। हैं मैं दूध के मैं तो लिए. यही बोलता हूँ कि इतनी मेहनत भी क्यों करनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। That is what लेकिन महाराज साहब वो भी हकीकत, नहीं समझते. मैंने महाराज साहब समझते नहीं है, क्या है कि वो ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं। नहीं, एंड वो लोग व्याख्यान दिए तो पब्लिक समझेंगी ना, वो खुद नहीं चेंज नहीं होंगे वो तो नहीं पब्लिक बोलेंगे। कहाँ चेंज. आई टेल यू दे विल नॉट स्पीक, बिकॉज इफ दे स्पीक दे विल बी थ्रोन अवे। द सिस्टम विल नॉट अलाउ देम टू सस्टेन। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स। हम्म. तो हमको हमारी मेहनत करना है, जो जो आगे लगेंगे वो करेंगे। और जैनों के लिए तो मेरा स्पेशल पीपीटी प्रेजेंटेशन है, और वो सूत्र के साथ है। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन दैट दे कैन से एनीथिंग अबाउट इट। Please share that thing also on the group, sir. या Yeah. And Lata ji, if you want to share PPTs or talk to people, don't worry about what the result is. If you would like to do this kind of work, we'll help you, and you can go and talk to people, share presentations. Just keep doing it. Eventually, people change. Even I had spoken to someone to a Jain community couple of years back, quite a few years back, and the Jain Muni himself was very happy with what I spoke and everything. And he himself said, I think he was not consuming milk. He was, in fact, even saying no dairy products with yeast and all of that. So, but जैन आई विल from टेल यू। after the full talk, so many people came to me and said we have health problems because they have so much of ghee. जय जी, They're आई not. विल टेल यू वन थिंग। या आई विल टेल Yeah. यू वन थिंग। Jain religion is the only religion that clearly states not to consume any animal based food. इस नॉनवेज भी Yeah. नहीं खाना है, हनी भी नहीं लेना है, दूध दही घी मक्खन नहीं लेना है। इतना Even क्लियर है silk और किसी रिलीजन में नहीं बताया है। और सिल्क क्लोथ्स भी पहनते हैं, पूजा में यूज करते सिल्क का कपड़ा, नहीं नहीं वो which is सब really जाने दो, bad. मैं तो अभी खान पान की ही बात करता हूँ। तो खान पान में जब आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाकी सब में तो क्या है, यू आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। एंड दिस इज सूत्र प्रमाणित है, एक नहीं अनेक सूत्र। सो आई हैव टू टेक द प्रिंट आउट्स एंड गिव इट टू दिस पीपल के बाबा दिस इज व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। बट देन दैट ट्रेडिशन अल्टीमेटली वर्क्स ऑन देम एंड देन दे डोंट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट द ट्रेडिशंस। या अशोक जी। हाँ जी, मैं बात कर सकता हूँ प्रदीप भाई? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, आपने जो भी बताया मैं आपको सलाम करता हूँ और नमन भी करता हूँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भारत में मेरे गुरु जी के साथ में पहला किसान हूँ, जैन किसान हूँ, जो राजा ऋषभदेव की 1960 से खेती कर रहा है। राष्ट्रपति अवार्ड है, इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज है। खाली पानी सिंचन से हमको सब प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर आपको उसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.savesangvi.com। और ऑर्गेनिक खाना सभी को चाहिए, तो कैसे हम लोग उगा रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और उससे कैसे आयु बढ़ रही है, और 100% कैंसर कैसे क्योर कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम लोगों के चरणों में हमने इस वेबसाइट से द्वारा रख दी है। अशोक जी, आपका वेबसाइट जरा चैट में टाइप कीजिए तो पीपल कैन रेफर टू इट. या यू मैडम कैन अभी टेक माय मेरे नंबर फ्रॉम जया जी एंड देन कॉल मी। ओके, आप मेरा नंबर ले लीजिए जया जी से एंड देन फिर मुझे कॉल कीजिएगा। एक बार लिख लेंगे, क्योंकि मैं 78 का हूँ और मुझे इतना मोबाइल यूज करने को नहीं जम रहा है। अगर आप ठीक है, ठीक है. लिख लेते स्पेलिंग हैं तो लिख बताइए. लीजिए आप बता दीजिए। www.savesangvi SAVESANGHAVI.com। देखिए उसमें हमें वर्ल्ड के कितने प्राइजेस है, और खाली पानी सिंचन से क्या 900% बताया? www www savesangvi.com SAVESANGHAVI.com। और कोई भी बीमारी 15 दिन में कैसे ठीक करना, वो भी उसी में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। नाइस. तो ये जो है दिस इज व्हाट वी आर डूइंग।
और बाकी जो है वो, हाँ, अभी और किसी का प्रश्न है या? Someone is asking that Virendra ji was asking that buffaloes and cows. He believes that God has created everything for a reason. So what is the use of cows and buffaloes then? अगर हम लोग उनको यूज नहीं करते तो सी वो आपका जो क्या है, कहना ऐसे तो बोलेंगे तो इंसान का काम भी क्या है? इफ यू आस्क मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्रीचर इज क्रिएटेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। जो भी है 84 लाख जीव बनाए हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया भी बनाए हैं, वायरस भी बनाए हैं, दैट इज टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ए काउ इज बीन मेड फॉर समथिंग, बफेलो इज बीइंग मेड फॉर समथिंग। नाउ दे नेचर इज क्रिएटेड फॉर एन इक्विलिब्रियम। उसकी बस्ती कंट्रोल करने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो है एनिमल्स भी बनाए हैं, जो उसको खा के उसकी बस्ती कंट्रोल करेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ाने का भी काम नहीं है, कम करने का भी काम नहीं है। नेचर विल हैज मेड इट्स ओन इक्विलिब्रियम। और बाकी जो है, ये नेचर टेक केयर कर लेगा। अभी किसको क्यों बनाया वो हमारा काम नहीं है। उसने बनाया है, प्रकृति का पूरा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए 84 लाख जीव बनाए हैं। मच्छी का क्या काम है, चूहे का क्या काम है, हर एक का अपना अपना काम है। कोई सफाई का काम करता है, कोई कचरा खा के अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। सो वी कैनॉट से मच्छी पानी में अपना पानी का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारी सोच के बाहर की चीज है। तो हमें समझना चाहिए कि उसने बनाया है उसका शोषण के लिए, हमारे शोषण के लिए नहीं बनाया है। हमारे खान पान के लिए फल है, सब्जियां है, पत्तियां है, ये सब हमारे खान पान के लिए बनाया है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। Sir, I would like to सर tell एक one. प्रश्न था। हाँ, I would बताइए। like to tell one thing on this. Animal agriculture अब वो हो रहा है इसलिए ज्यादा हो रहे। अगर वो लोग नेचुरली जीते हैं तो इतने पैदा भी नहीं करेंगे। वो तो हकीकत है, जबरदस्ती हम उनको पहले बस्ती हाँ, बढ़ाते इतना हैं। पैदा कर रहे हैं। बस्ती बढ़ा के फिर उनको जब काम है तो उसको मार के खा जाते हैं, जब काम नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो हमारा पूरा जो है सेल्फ सेंटर्ड अराउंड अस। हर जीव जो है पैदा होगा तो हमारे स्वार्थ के लिए, मरेगा तो भी हमारे स्वार्थ के लिए। सो दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। लेकिन जो जन्म और मरण प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति डिसाइड करेगी। हम कौन होते हैं कि इसको जबरदस्ती पैदा करने वाले या जबरदस्ती किसी को मारने वाले? वो सत्ता प्रकृति की है, हमारी नहीं है। लेकिन हमने पूरी जो चीज है हमारे कंट्रोल में ले ली है। उसको कब पैदा होना है, उसको कब मरना है, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यमराज का काम हम कर रहे हैं। फिर वो सजा तो हमको मिलने वाली है, इसलिए सजा है बीमारी और दुख, वो मिल रही है। अनिल जी का किस कोई सवाल है? सॉरी, यस हाँ, अनिल मेरा जी। एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए अनिल जी। हाँ प्रदीप भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। आपने हाँ, अभी बताया कि भाई आपके पास लिखत में भी है जैन सूत्रों के बारे में। तो मैं हाँ, जो आउटरीच वगैरह करता हूँ, काफी जैन लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है। तो मुझे हाँ। ऐसा कुछ अगर आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, या मैं फिजिकली भी आपसे कलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे बहुत काम आएगा उनको कन्विंस करने में कि भाई सूत्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है करके, कि ये सब नहीं लेना है आपको। मैं वर्बली बोलता हूँ बट वो इतना कन्विंस नहीं होते हैं। फाइन फाइन, चलो मिलेंगे, बात कर लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा, मैं पूछूं क्या कुछ? हाँ, बताइए, आप पूछिए। हाँ, एक जनरल डिस्कशन होता है, जैसे गाय की बात करते हैं हम। तो गाय तो पालतू जानवर है। उसको हम्म। महाभारत से, कृष्ण के समय से पाला गया है ना। हम्म। उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, और पालने का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है। तो म्यूचुअल बेनिफिट यदि है। यदि गाय को नहीं पाला जाएगा, और मतलब हम्म। उससे कुछ प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा, तो उसे कोई हम्म। पालेगा भी नहीं। लेकिन पालने की जो पालने वाला तो 84 लाख जीव को ऊपर वाला है, कुदरत है, हम नहीं पालते। हमको कौन पालता है मुझे नहीं बताओ, नहीं, हमको कौन पालता है? पहली बात ये ये है कि हमको कौन पाल रहा है मुझे बताओ, हमको कौन पाल नहीं, रहा वो है? आपकी बात ठीक है। नहीं नहीं, ठीक नहीं आपकी हो, बात ठीक हकीकत है, है। पर ये कोई हमने चीज जो हमने हाँ, बोलिए सर, हाँ, बोलिए। बोल रहा हूँ, कोई चीज जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, हम्म। वो चीज को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है।
नहीं, देखिए, तो हजारों वर्षों से शराब भी चली आई है, वेश्यावृत्ति भी चली आ रही है, नशा पता भी चल रहा है, और नारी जो है ना, ये सती प्रथा भी चली आई है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, उसको चेंज करने की जरूरत है, तो करना ही पड़ेगा। तो ये कहना कि भैया इतना सालों से चले आए रहे, हमारे राजा महाराजा 100 100 शादियां, 500 500 शादियां करते थे, हम भी करेंगे, दैट इज नॉट एन आंसर, इट्स अ रॉन्ग थिंग। वट एवर इज रॉन्ग उसको हमें चेंज करना ही है। जागे उस दिन से सवेरा है। तो ये ट्रेडिशन है तो गलत है, तो गलत है, तो उसको चेंज करना जरूरी है। और हमारे जितने भी महात्मा आए हैं, जो दिव्य जीव आए हैं, उन्होंने यही किया है कि सभी को चेंज करने के लिए ही बोला है। तो उन्होंने परंपरा के विरुद्ध ही गए हैं, उन्होंने परंपरा के विरुद्ध ये सत्य बताया है, लोगों को जगाया है। तो हमारा काम भी है लोगों को सत्य बताने का। और जिसका पुण्य होगा वो जागेगा, नहीं होगा तो बीमारी और दुखों से पीड़ित रहेगा, सिंपल। सो दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। अब बात है जहां तक आपने कृष्ण की, तो अगले प्रोग्राम में कृष्ण जी बिल्कुल आएंगे। कृष्ण जी का मतलब क्या है, गोपाल का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में क्या उसका मीनिंग है, रियल मीनिंग क्या है, वो भी बताऊंगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम में आइएगा, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई शास्त्र क्या कहते हैं, शुद्ध रूप में क्या है, और हमारे तरफ हमको कैसे हमको कैसे उसे पेश किया गया है। And I तो just want to add, Hemant ji, या आपने बोलना पालना पालना means raising an animal with love, बहुत प्यार से उनको खाना खिलाना वगैरह and all of those things. But that is not the case. डेयरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, माँ का दूध, और वो पूरा इंडिया पे बेस्ड, इंडियन डेयरीज पे। वो जो डायरेक्टर है हर्षा, ही वेंट ऑल ओवर इंडिया, और डेयरी फार्म्स वगैरह को उन्होंने सॉर्ट ऑफ दिखाया कि क्या होता है। So there is no thing of that being taken care of बहुत ही प्यार से and all of that. It does not happen. And anyways, why should we use an animal? हमें जरूरत ही नहीं है। आप नहीं, देखोगे उसको like, बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। और उस yeah, जानवर का दूध पीना वो सबसे बड़ा क्राइम है, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द नेचर। दूध पैदा हुए बच्चे का खुराक है, एडल्ट डाइट बन नहीं सकता। और हमने एडल्ट डाइट बनाया है, तो उसकी इफेक्ट जो है बॉडी माइंड एंड सोल पे क्या होती है, जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तभी वो आएगा, ये टॉपिक भी आएगा। इम्पैक्ट ऑफ मिल्क ऑन माइंड बॉडी एंड सोल, दैट ऑब्वियसली विल बी देयर। नहीं, और सो वो एनिमल गाय का दूध बच्चा ही पिएगा उसका, बाय ह्यूमन बींग्स। yeah. वही तो गलती है ना, गाय का दूध गाय का बछड़ा पिएगा, भैंस का दूध भैंस का बछड़ा पिएगा, कुत्ती का दूध उसका बछड़ा पिएगा। सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू कम इन द कमिंग प्रोग्राम्स व्हाट एवर वी आर गोइंग टू कंडक्ट। ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट और प्रोग्राम अब कब है मतलब? not next week but the week after that, I'll ask Pradeep ji if he's available, तो तभी कर लेंगे। या नेक्स्ट whichever way वीक is और comfortable, का yeah, है yeah. schedule. Yeah. I wanted to ask you a question, Pradeep Yeah, ji, कि आपका yeah, जो ट्रांजिशन हुआ like from the non-vegan diet, यानी कि you were consuming dairy and all that, I'm guessing पहले, और yeah. फिर आपने ट्रांजिशन किया, तो आपका Yeah. हेल्थ को एकदम मस्त होने के लिए कितना टाइम लगा, लाइक हाउ मच टाइम डिड इट टेक फ्रॉम नॉन-vegan First टू thing is, vegan, और to first see thing, yeah, improvement in your health? yeah. First thing, let me tell you one thing, that I'm a core technical person and I'm working in field of design and development. सो मुझे ये सब चीज के डाइट में मैं कभी पढ़ा भी नहीं था। दैट वाज नॉट ऑफ माय टॉपिक। जो मिला वो खा लिया, मिला वो खा लिया, आई नेवर थॉट अबाउट इट। और डॉक्टर भी यही बोलते थे, घर में भी वही चलता था, पूरा समाज भी यही बोल रहा था, तो इट वाज फाइन। बट वन फाइन डे व्हेन माय फ्रेंड टोल्ड मी कि ये डेयरी का बहुत आइटम बहुत अच्छा आता है, व्हेन आई वाज पासिंग दैट साइड, मैं मेरे गाड़ी वहां लेके रखा, and then I went there. I took the coupon, I went and took it. And then when I went to that, अरे बहुत neat and clean dairy है, something है, very fine. Then I saw some cows tied this side and one young calf was tied on the other side. So being ignorant, I just asked that fellow, ये कितने महीने का होगा, 2 3 महीने का होगा या कैसा है? बोलता नहीं साहब, अभी 2 3 दिन पैदा पहले ही पैदा हुआ। तो बोलता इसकी माँ किधर? बोलता उधर बांधी हुए। तो बोला उसको इधर उसको क्यों बांधा है? बोलता अगर इनको बांधेगा नहीं तो पूरा दूध पी जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? सो इट वॉज अ बिग शॉक टू मी कि जिसको के लिए दूध कुदरत ने बनाया, उसका दूध छीन के हम पीते हैं।
I said, no, I can't take it. So my conscience told me, and in a fraction of a second, I quit it. I didn't knew what is veganism, what is Vigay Tyag, nothing. I was never aware. I was on my solo journey, and then I did it. And then when the health problems were there, I went to a awareness campaign of nature science, and where I understood that if you want to remain healthy, fit, and fine, you have to be in sync with the laws of nature, and where quitting the dairy product was very natural and very obvious. तो मैंने छोड़ा, मैंने मेरा खान पान भी छोड़ा छोड़ा एंड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स आई गॉट द रिजल्ट्स. मेरा वेट था, पेट था, वो भी चला गया. मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया. पहले थकान वाज अ वेरी कॉमन थिंग. आई यूज्ड टू गेट टायर्ड. नाउ आई डोंट फील टायर्ड एट ऑल, और इवन इफ आई वर्क ऑल थ्रू आउट द डे. सो बॉडी पेन, बैक पेन सब चला गया. हेडेक था, ये था, सब चला गया. सो दिस हैज हैपेंड नेचुरली. Within a week, you said it happened. नहीं, विद इन मीन्स आई विल से दैट मेरा वेट था, पेट था, वो सब जाने में एक आध महीना लगा होगा या 1.5 महीना लगा है, बट द ट्रांजिशंस वर नोटिसेबल. एवरीबडी से, Okay. अरे व्हाट इज दिस, क्या हो गया. सम पीपल Uh, व्हेन आई रिड्यूस माय वेट, अरे तुम बीमार हो गए क्या. मैं बोला, मैं बीमार नहीं, मैंने बीमारी निकाल दी है. अभी मैं एनर्जेटिक हो चुका हूँ. सब कचरा निकाल दिया. आई सेड व्हाटएवर एक्सेस दैट आई हैव रिमूव्ड इट. yeah. So Nice. it's within a finite time phase only this has happened. Okay. Fantastic. Okay. Someone is asking, please specify how many next sessions will be there. Please specify details. Yes. So Sejal, just give us some time. If you're in the 66-day challenge, I will be posting the details of the next session. I'm guessing 1 or 2 other sessions. Depends on Pradeep ji how much more information he wants to share and people are ready to listen to. So at least 1 more or 2 more sessions will be there Yeah, with yeah, Pradeep. that, and plus there will be other speakers. If you want, I can get those speakers also. So obviously that is Yeah. never a problem. And one Yes, we more thing want more and more that I people want to to say is, please tell the people how this group is going to support them for 66 days. Because that is the most Yeah. important part. Means, Yes. will So you give online support? They can write yes, to you on your WhatsApp, or what, in the group they can I'm put it. on WhatsApp Their 24/7, like most, and except when I'm sleeping, but I'm available in the group so, chats and everything. We've held live cooking sessions already. We have Dr. Achutan with whom we've collaborated from Sampurnahara. So he will also talk about nutrition and health angle and how to eat more whole food plant-based and how it's going to benefit your health. He's reversed lots of people's diseases also. yeah. And yes, we'll introduce lots of new guests to speak about their story, just like Pradeep ji. So yeah. Yeah, and my wife is also a very good cook. She makes a lot of vegan Yes, alternatives I'm and a lot of immediately also varieties. to maybe do a little live session, live cooking session. It will be Yeah, great. yeah. She has also got a PPT presentation. She can very well present those presentation Oh, as and when. fantastic. Okay, I'll Yeah, speak to her. yeah. Then. Okay, does anyone else have any other questions? Anyone has any other questions? Otherwise, we can wrap it up. We don't want to take up too much of Pradeep ji's time also. But please do ask questions because these are rare opportunities where you get to speak to someone who's so knowledgeable in this field. So it would be great to clear all your questions. If not now, you can ask next time. Think about your questions and ask now that you all know what Pradeep ji is all about. So thank you very much again, Pradeep ji. Okay, It was thank fantastic. you very much. Very Thank you. inspiring. Like even I learned so many new things. So I'm very curious to learn about the Jain scriptures as well. So maybe you can have a session about that. It would be very nice. Yeah, we can have a special session. That's not a problem. Okay. Yeah. That would be good. Well, this is an Okay. awareness. Basically, see, inertia to change is always there. And when it Yeah. comes to, again, taste and addiction, things are not that easy. It's the most difficult thing. And because, basically all these we are driven by taste, as I said. And Yeah. all addictive things which are there, all dairy products are addictive. And then Yes. quitting them is not that easy. And once it has become a popular tradition and Yeah. religion has also glorified it, then it is the most True. difficult thing that that can be worked out. Yeah. But there are a lot many people, they have transformed themselves. Yeah. Today only at least 5-6 people told me, अरे आपका सुन के हमने तो इतना साल हो गया छोड़ दिया. So many things are happening. So things are happening in its own place, and gradually momentum will build up, and let us hope that वो सुबह तो कभी आएगी.
आ जाएगी for sure. I'm very Yeah. optimistic. I believe कि आ जाएगी. धीरे Yeah. टाइम लगेगा पर आ जाएगा. Yeah, No yeah. problem. Yeah. Okay. See, fighting a Thank you, freedom everyone. war is easier. Fighting a freedom war is easy than fighting against your taste buds. Yeah, true. People can do lots of things, but taste buds is a very big thing. Yeah, But that I is the tell you, biggest addiction, and to convert somebody so is the most difficult thing. शराबी को शराब छुड़ाना आसान है, लेकिन किसी को बोले हुए भैया ये टेस्टी खाना छोड़ दे, जंक फूड खाना छोड़ दे, डेयरी छोड़ दे, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. so we don't say छोड़ दे, we say replace कर लो. या पनीर के मीन्स बजाय उसको टोफू खा छोड़ के लो. उसको रिप्लेस करो एंड विथ Yeah, हेल्दी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस थिंग. yeah, Important thing is exactly. we are changing it with healthy, tasty, nutritious, and violence free. Yeah, exactly. Only when it comes to their health, they will change the diet. Otherwise, they will not. And Yeah. that is why I am giving a health as the prime importance. Only if we Yeah. talk of ahimsa, nobody is interested. When the health comes, yes, I am concerned. Yes, आज नहीं तो कल मैं भी इसकी ट्रैप में आएगा. Yes. People are more enthusiastic to understand and apply. Yep. Rest of the things are academics. है ना, अहिंसा की बात करना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, फिर छोड़ देना है. Yeah. And I also wanted to say we also train, like through Plant-Based Treaty, we go and train and teach people how to cook vegan food. So if anyone has any space around Pune, Bombay, I live in Pune, where we can train people, I'm very happy to go and teach people how to cook basic Indian vegan food or even international. So, yeah. Okay. Thank you, everyone, Pradeep ji. Yeah, thank you. Thank you so much. And Thank we'll you. see you all in the next session. Yeah, Bye. yeah. Take care. And Thank please go vegan or start thinking at least, and we'll help you all the way. Fine. Bye then.